Hello friends, how are you all? Fine? For class 12th, chapter number 10, 12. In previous class, we already completed chapter number 11, biotechnological principle and process. Our next one is biotechnology and its application. In previous chapter, friends, we have to studied about principle of biotechnology and process. In process of biotechnology, there is the tools is required for rDNA technology. We have to study about the different tools that is required in rDNA technology, restriction enzyme, cloning vector, gel electrophoresis, PCR, and various digesting enzymes. Compile this all either with the help of these tools. We have to perform a rDNA technology, recombinant DNA technology, and modified the genetic composition of an organism. Right? उसको क्या करेंगे हम? Modified करेंगे. Steps for rDNA technology: isolation of DNA from source cell by giving a treatment of various digesting enzyme. Isolation करने के लिए एंजाइम का ट्रीटमेंट देना पड़ेगा. Isolated DNA will be cut by restriction enzyme, maybe endo or exon nuclease. Fragmented DNA will be separated by gel electrophoresis. From gel, we have to isolate our desired DNA called elution. After isolating our desired DNA, ligated into vector DNA, or this vector will be also cut by same restriction enzyme. This is used at the time of either those enzyme which we have to used for cutting the desired DNA. Isolated DNA ligated into vector DNA by DNA ligase and form a recombinant vector. Now this recombinant vector transfer into host cell. It will be selected based on selection of recombinant versus non-recombinant gene, that is antibiotic resistance gene, or either based on color of bacteria they form. Different tools, either method we have to use to transfer our desired DNA to host cell, make the cell competent by giving a treatment of divalent cation calcium, heat shock treatment, direct transfer our desired DNA into animal cell by microinjection, into plant by biolistic or gene gun, or either disarm pathogen we have to used. This is the steps. After forming a rDNA, with the help of rDNA technology, modified our organism. This modified organism will be used to produce our desired product at a large scale in bioreactor. And after that production, there is the downstream processing is this, or in downstream processing, there is the purification, isolation of our desired product. Then after add the preservative into it, make appropriate packaging or dispatching for further use. It's an downstream processing, or this downstream processing is different to different product or based on organism which we have to use for produce our desired product. It's a summary of previous chapter, biotechnology application and principle. Principle and process. Next topic is biotechnology and its application. Application, it means modified organism, GMO, genetically modified organism will be used further in different sector. In this chapter, friends, we have to study about mainly 4 points. Very small chapter is that. 12.1, biotechnology application in agriculture. First one, it means genetically modified organism, either plant used in produce or desired product at large scale in pharmaceuticals, in farm. It means in agriculture field.
Biotechnological application in medicine, it means in pharmaceutical, for produce our desired vaccine, for antibiotics or either any chemical substances. Transgenic animal. Why transgenic animals are modified? To check the disease resistance gene, sensitivity of an organism, safety level testing. Clear? All the experiment will be done on this organism, transgenic animal. It means lab animals. Or ethical issues. Let's start to study about one by one topic. बायोटेक्नोलॉजी हेडिंग से दिया हुआ टेक्स्ट बुक का ही है. एज यू वुड हैव लर्न फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर में हमने बायोटेक्नोलॉजी क्या स्टडी किया. इट्स एन ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर, लाइक एन एग्जांपल microbiology, then after biochemistry, genetics, plant biology, botany, zoology, life science, dairy science. Clear? All are including in one field, that is biotechnology. You would have learned from the previous chapter, essentially deals with industrial scale production. Essentially deals with industrial scale production of biopharmaceuticals and biological using genetically modified microbes, fungi, plants and animals. Clear? तो यहाँ पे हमने स्टडी क्या किया है from previous chapter. Essentially deals with industrial scale production, at a large scale production of biopharmaceuticals and biological using. किसका यूज करना है प्रोडक्शन के लिए? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का यूज करना, जीएमओ, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स एक्सेट्रा. वी हैव टू यूज टू प्रोड्यूस आवर डिजायर्ड प्रोडक्ट. द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड, इसका एप्लीकेशन किस किस में है? इट इंक्लूड्स थेरापेटिक्स, थेरापी आफ्टर डिसीज होता है जिसका ट्रीटमेंट लिया जाता है, थेरापेटिक्स. डायग्नोसिस, डायग्नोसिस इट मीans to test out which type of disease or which type of symptoms will be appears or because of which type of organism. Diagnosis, detection. It's a treatment, therapeutic treatment. Diagnostics, detection. Genetically modified crops for agriculture. एप्लीकेशन कहाँ कहाँ दिया है? थेरापेटिक के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, डायग्नोसिस करने के लिए, मॉडिफाइड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में प्रोसीड फूड को प्रोसीड करके प्रिजर्वेटिव वगैरह बना के लॉन्ग टर्म प्रिजर्व करके एनहांसिंग द न्यूट्रिशनल क्वालिटी. बायो रिमीडिएशन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक आ रहा है. बायो रिमीडिएशन जो हायर क्लासेस में आपको पढ़ने को आएगा. टू रिमूव द पॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स. और इसी तरह यहाँ पे फाइटो रिमीडिएशन, बायो दिया है वहां पे आप ऐड कर सकते हो फाइटो रिमीडिएशन. फाइटो remediation to remove the pollution with the help of plant. और bioremediation it means remove the pollution with the help of bacteria, either microorganism. Waste treatment, waste water treatment plant में microbes का यूज स्टडी किया है. And energy production. 3 critical research area of biotechnology are. यहाँ से टॉपिक शुरू हो रहा है. यहाँ तक कौन कौन से फील्ड में हम यूज कर सकते हैं तो आपको बता दिया. थेरापेटिक के लिए बता दिया, डायग्नोसिस, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फॉर एग्रीकल्चर हो गया, फॉर प्रोसीड फूड के लिए उसका यूज कर सकते हैं, फॉर एनहांसिंग न्यूट्रिशनल क्वालिटी, प्रिजर्वेशन, फॉर टेस्ट. क्लियर? बायो रेमेडिएशन टू रिमूव द पॉल्यूशन. वेस्ट ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आपने स्टडी किया इधर फॉर डिग्रेडेशन. एनर्जी प्रोडक्शन, कई सारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, क्लियर, माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स है जिसका हम एज ए एनर्जी पर्पस यूज कर सकते हैं. लाइक एन एग्जांपल मीथेन गैस, क्लियर, produced by methanogens bacteria. Jatropha, it's a plant product, clear, for production of biodiesel. This all are the energy production. 3 critical research area of biotechnological. अगर ये फील्ड को हमें डेवलप करना है, इतने सारे फील्ड में इसका यूज हो सकता है. डेयरी फार्मास्यूटिकल्स दिया हुआ है, डेयरी फार्म, एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल्स,
क्लियर। तो वेरियस एनर्जी प्रोडक्शन डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में जिसका यूज है तो उसको एनहांस करना है, तो एनहांस करने के लिए क्या करेंगे, 3 उसके रिसर्च फील्ड है। रिसर्च एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया, इसमें हम चेंज करेंगे मेन, तो बहुत सारे सेक्टर में क्या होगा, इवोल्यूशन होगा, ग्रोथ होगा। फर्स्ट वन, प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट, ऐसा कोई एंजाइम बनाया जाए जिससे प्रोडक्शन ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाए, चेंज हो जाए, इन द फॉर्म ऑफ इंप्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ऑर्गेनिज्म के अंदर ही क्या होगा, एंजाइम्स होगा, तो एक ऐसा कैटलिस्ट देना है इन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म जो प्रोडक्शन रेट को ड्रामेटिकली इंक्रीज कर सके, यूजुअली माइक्रोब्स और प्योर एंजाइम्स, और इधर आइसोलेशन करके एंजाइम्स का भी यूज कर सकते हैं। सेकेंड वन, क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन, एक ऐसा कंडीशन बनाना है, आपने ऑर्गेनिज्म दे दिया, एंजाइम बना लिया, अब वो एंजाइम आइदर ऑर्गेनिज्म को मोस्ट एक्टिव स्टेज में मेंटेन करने के लिए ऑप्टिमम कंडीशन देना है, तो क्रिएटिंग ऑप्टिमम कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग फॉर ए कैटलिस्ट टू एक्ट, इंजीनियरिंग फॉर ए कैटलिस्ट टू एक्ट, उस पे इंजीनियर करके ऐसा कंडीशन देना है जिसमें ऑप्टिमम कंडीशन पे, ऑप्टिमम टेम्परेचर पीएच पे अपना एंजाइम आइदर ऑर्गेनिज्म बेस्ट वर्क कर सके और उस पे एक्ट करके प्रोडक्शन रिलीज कर सके। थर्ड वन, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, पहला हो गया ऑर्गेनिज्म को डेवलप करना, फिर प्रोडक्शन करना, और प्रोडक्शन करके उसको क्या करना, हार्वेस्ट करना। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज टू प्यूरिफाइड द प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कई सारे ऑर्गेनिज्म प्रोडक्शन देते बट आइसोलेशन टेक्निक हमें मालूम नहीं, हाउ टू आइसोलेट अवर डिजायर्ड प्रोडक्ट फ्रॉम दिस कंपाउंड आइदर फ्रॉम दिस ऑर्गेनिज्म, तो उसके लिए डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग को इंप्रूव करना, प्रोडक्शन के लिए ऑर्गेनिज्म को इंप्रूव करना, ऑर्गेनिज्म को इंप्रूव करके उसको मेंटेन करना बाय मेंटेनिंग द ऑप्टिमम कंडीशन, ऑप्टिमम कंडीशन मेंटेन करके प्रोडक्शन को हार्वेस्ट करना, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो ये 3 फील्ड में क्या करना है, रिसर्च की जरूरत है, आइदर कोई ऑर्गेनिज्म डेवलप करे, कोई एंजाइम डेवलप करे फॉर प्रोड्यूस और डिजायर्ड प्रोडक्ट एट लार्ज स्केल और इन गुड क्वालिटी मैनर्स। कई सारे जो रिसर्च एरिया में हम ऐसे ऑप्टिमम कंडीशन डेवलप करें, in such condition organism will be survive in most active stage and produce our desired product at large scale. Third one, to purify or harvest either to preserve our desired product, it means to improve the downstream processing through technology. तो ये 3 रिसर्च एरिया है बायोटेक्नोलॉजी में जिसमें आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो, जिससे प्रोडक्शन रेट, प्रोडक्ट क्वालिटी, क्वांटिटी सब इंक्रीज हो जाएगा। Let us now learn how the human beings have used biotechnology to improve the quality of human life. Human beings ने कैसे यूज किया है बायोटेक्नोलॉजी का for increasing the human life, especially in the field of food production and health. अपने हेल्थ के रिलेटेड और फूड प्रोडक्शन के रिलेटेड क्या क्या उसने चेंज किया है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। टू 2.1 नेक्स्ट, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है चैप्टर का, एप्लीकेशन कहां पे, एग्रीकल्चर फील्ड में। बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर फील्ड में क्या रोल हो सकता है, बिल्कुल सिंपल है, हमें जो जीन चाहिए वो कहीं दूसरे प्लांट में प्रेजेंट है, वहां से हार्वेस्ट करके अपने डिजायर्ड प्लांट में हम इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से क्वालिटी इंक्रीज हो सकता है, क्वांटिटी इंक्रीज हो सकता है, न्यूट्रिशनल क्वालिटी इंक्रीज हो सकता है, सेल्फ लाइफ पीरियड इंक्रीज हो सकता है, क्लियर, रैपनिंग पीरियड इंक्रीज हो सकता है, कोई भी बहुत सारे उसमें चेंजेस लाया जा सकता है बाय इंप्रूविंग द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। लेट अस टेक अ लुक एट द 3 ऑप्शन दैट कैन बी थॉट ऑफ इंक्रीजिंग द फूड प्रोडक्शन। 3 ऐसे टॉपिक है जिसकी वजह से हम फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, पहला मेथड ये होना चाहिए जो ऑलरेडी हमने इंप्लीमेंट कर दिया है, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में केमिकल का मैक्सिमम यूज करना, पेस्टिसाइड, वीडिसाइड्स का यूज करके प्रोडक्शन रेट इंक्रीज करना, जो ऑलरेडी करंट सिनेरियो इस पे ज्यादा फोकस कर रहा है, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। इनिशियली प्रोडक्शन रेट जरूर इंक्रीज होगा,
but day by day production will be decreasing because of the by use of over chemicals or either fertilizers. Because of this, their side effect in soil can be appears. Which type of side effects will be appears in soil? Increase the soil salinity, increasing or decreasing the pH, increasing decreasing soil hardness, water holding capacity will be decreased, nutritional quality will be decreased. These all are the side effects of agrochemical based agriculture. Another side effects make the crop costly. It's an costly procedure because chemical fertilizer and herbicides are more costly, and it gives adverse effect. Initially they increase the production rate, but then after it will be decrease the production rate because of their effect. First, अगर ये एग्रीकल्चर फील्ड में इंप्लीमेंट करना है तो इसके साइड इफेक्ट्स वगैरह हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो पहला यहाँ पे इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर. सेकेंड है एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर के बाद सेकेंड टॉपिक आएगा ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर. एक तो केमिकल में इंप्रूवमेंट करके हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं प्रोडक्शन रेट केमिकल के यूज से, केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स के. ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर जो वो भी आपको मालूम है, इन ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर वी कैन नॉट यूज केमिकल पेस्टिसाइड और वीडिसाइड्स बट विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स और आइदर विद द हेल्प ऑफ different method we have to improve the production rate. और थर्ड वन इज जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर. पहले केमिकल एग्रोकेमिकल, सेकंड वन इज ऑर्गेनिक और थर्ड वन इज जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर मतलब बायोटेक्नोलॉजिकल. जेनेटिकली इंजीनियर्ड बेस्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर मतलब क्रॉप को जेनेटिकली मॉडिफाइड करके प्रोडक्शन रेट इंक्रीज करना है. क्लियर. यहाँ पे थर्ड जो दिया है वो ये है इंप्रूव द क्वालिटी. आइदर यहां पे इसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मीनिंग ये ले सकते हो. क्रॉप वेराइटी विल बी मॉडिफाइड, मॉडिफिकेशन ऑफ क्रॉप वेराइटी. तो फर्स्ट हो गया एग्रीकल्चर में एग्रोकेमिकल बेस्ड, सेकेंड हो गया इनऑर्गेनिक और थर्ड हो जाएगा जेनेटिकल इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर. तीन में से बेटर कौन सा है? कोई ना कोई सबका साइड इफेक्ट हमने आपको केमिकल फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एंड बायो फर्टिलाइजर, तीन टाइप के फर्टिलाइजर पढ़ाया था. ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आपने फ्रेंड स्टडी किया है जिसमें हम काउ डंग केक वेस्ट, एनिमल वेस्ट, प्लांट वेस्ट जिसको डिकम्पोज करके यूज करते हैं एज ए फर्टिलाइजर. Chemical fertilizer you all know NPK, nitrogen, phosphorus, potassium, urea and chemical pesticide also you know. Clear? It will be produced in industry at a large scale or it's an very costly. Even it gives side effect also. Costly तो है ही, it gives adverse effect into soil or either into natural flora and fauna. Organic fertilizer cannot give adverse effect into natural flora and fauna, but their requirement is more. Transportation cost is also more. Nutritional quality is less. Availability is less. These all are the drawback of organic fertilizer. Biofertilizer, product of biotechnology. Benefits, their implement is less, easily available, cheaper, no side effect, no adverse effect in
natural flora and fauna, and easily available everywhere. Applied method is also easy or no side effect at all. So, which one is better? Chemical, organic, or bio fertilizer? Obviously, bio fertilizer. Same way here. For improving the production rate or either nutritional quality in agriculture, there is the three sector for this, that is agrochemical based agriculture, organic agriculture, and genetically engineering crop based agriculture. If you have to improve in any of the one field, automatically our production or either quality will be increasing. स्टार्ट किया एग्रोकेमिकल से. सबसे पहले फार्मर एग्रीकल्चर में केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं करते थे. जो भी कंपनीज फर्टिलाइजर बनाया, ग्रीन रिवॉल्यूशन जब हुआ तो तब की बात है, कॉस्टली था, अप्लाइड कैसे करना नहीं मालूम था, ट्रस्ट नहीं था. तो केमिकल फर्टिलाइजर बनाने वाला कंपनी ने, गवर्नमेंट ने उसको जो इरिगेशन थ्रू वाटर देते हैं हम फार्म में, वो इरिगेटेड वाटर में ऐड कर दिए फर्टिलाइजर्स. जिन लोगों ने वो वाटर का यूज किया था थ्रू कैनाल्स, उसमें फर्टिलाइजर था. बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजर इनटू वाटर, द प्रोडक्शन रेट drastically increase. And those farmer, they cannot be use the canal water for irrigation. They do not give a treatment of fertilizer into their farm also. So clear cut division will be appears. In those farm, they use canal water, their production rate increase. And those farm, they do not use canal water, their farm production rate will be decrease. What will be the difference? Water is different? No. After that, the companies, some person or either government says to all peoples about the fertilizers. And due to fertilizer, production rate will be increasing. After that, all the farmer will be applied the chemical fertilizer into their field for increasing the production rate. And day by day, their use will be increasing. Even excess from their requirement, जितना रिक्वायरमेंट था उससे भी ज्यादा ये लोग यूज करने लग गए. तो साइड इफेक्ट क्या होगा? ड्यू टू हायर अमाउंट ऑफ यूजिंग द केमिकल फर्टिलाइजर्स, दे गिव्स एडवर्स इफेक्ट in natural flora and fauna. Natural soil microbes will be died, salinity will be increasing, salt concentration, soil hardness, because of those root cannot be developed, cannot be absorbed more amount of nutrient or water, or natural cycling will be disturbing, or day by day production rate will be decreasing. So here in this topic, that things is explained. The green revolution succeeded in tripling the food supplement. Green revolution में 3 type food supplement increase हो गया due to use of chemical fertilizer, right? Food supplement. By it was not enough to feed the growth of human population. फिर भी अपना जो ह्यूमन पॉपुलेशन जो रेट से इंक्रीज हो रहा है उसको फुलफिल करने के लिए जो ग्रीन रेवोल्यूशन में केमिकल फर्टिलाइजर से हमने प्रोडक्शन रेट इंक्रीज किया था वो इनफ है नहीं. नाउअडे बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन रेट विल बी डे बाय डे इंक्रीजिंग और इन फार्म प्रोडक्शन रेट विल बी डिक्रीजिंग. इंक्रीज yield have partly been due to the use of improved crop variety. प्रोडक्शन रेट इंक्रीज हुआ था बिकॉज ऑफ improved crop variety, but mainly due to the use of better management practice and use of agrochemical fertilizer and pesticides. प्रैक्टिस में चेंज किया था और फर्टिलाइजर
और पेस्टिसाइड वीडिसाइड्स के यूज से ये प्रोडक्शन रेट इंक्रीज हुआ था। समवट रोल ये तो था ही क्रॉप वेराइटी का, बट उससे भी ज्यादा रोल किसका था? इंप्लीमेंट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड ऑन क्रॉप प्लांट। हाउएवर, फॉर फार्मर इन द डेवलपिंग वर्ल्ड एग्रोकेमिकल आर ऑफन टू एक्सपेंसिव, बट अभी के कंपैरिजन में देखा जाए तो एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर जो मेथड ग्रीन रिवोल्यूशन में इंप्लीमेंट किया गया था, जिससे प्रोडक्शन रेट जरूर इंक्रीज हुआ था, बट वो अभी के क्राइटेरिया के बेस से इनफ नहीं है। सेकेंड, ज्यादा एक्सपेंसिव है, टू कॉस्टली एंड फर्दर इंक्रीज्ड इन यील्ड विथ एग्जिस्टिंग वेराइटी आर नॉट पॉसिबल। और अपने पास जो वेराइटी उस टाइम पे मॉडिफाइड किया था उससे ज्यादा प्रोडक्शन लेना वो पॉसिबल है नहीं। यूजिंग कन्वेंशनल ब्रीडिंग, कन्वेंशनल मतलब ट्रेडिशनल मेथड, यूजिंग कन्वेंशनल ब्रीडिंग, इज देयर एनी अल्टरनेटिव पाथ? दूसरा कोई पाथ है? दैट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेनेटिक्स कैन शो दैट फार्मर्स में ऑब्टेन मैक्सिमम यील्ड फ्रॉम देयर फील्ड। जेनेटिक्स के यूज करके, बायोटेक्नोलॉजिकल के यूज करके हम कोई ऐसा टेक्निक डेवलप कर सकते हैं, अल्टरनेट पाथ डेवलप कर सकते हैं जिससे फार्मर मैक्सिमम यील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं फ्रॉम देयर फील्ड। ऑब्वियसली आंसर हो जाता है यस। इंप्रूव द क्रॉप वेराइटी। इज देयर ए वे टू मिनिमाइज द यूज ऑफ फर्टिलाइजर और केमिकल so that their harmful effect on environment are reduced? Obviously yes। दो क्वेश्चन हो गए। बायोटेक्नोलॉजिकल यूज करके प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं, यस। केमिकल फर्टिलाइजर का यूज को हम घटा सकते हैं, ऑब्वियसली यस, और उसके साइड इफेक्ट को भी कम कर सकते हैं। क्लियर? यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इज पॉसिबल सॉल्यूशन। किसका यूज करना है? genetically modified crop. How we have to modify our crop? Through biotechnological process, rDNA technology, it's a solution, right? तो यहाँ पे पहले प्रॉब्लम बताया, ग्रीन रिवोल्यूशन में जो फर्टिलाइजर का यूज किया था उसका साइड इफेक्ट दिखाया, उससे ज्यादा उससे प्रोडक्शन लेना मुश्किल था, तो क्या हम बायोटेक्नोलॉजिकल प्रिंसिपल को यूज करके प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर के साइड इफेक्ट को कम कर सकते हैं? तो ऑब्वियसली आंसर यस है, और उसका मेन आंसर ये हो जाता है क्या यूज करना है? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इज पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर एग्रीकल्चर फील्ड। तो एग्रीकल्चर में आपको किसका यूज करना है? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। किस तरह का मॉडिफिकेशन करना है? जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करना है, नो डाउट्स, बट कौन से टाइप का मॉडिफिकेशन हमें चाहिए? तो ये यहां पे दिया, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक यहां से स्टोर हो रहा है। प्लांट, बैक्टीरिया, फंजाई एंड एनिमल्स whose gene have been altered by manipulation are called genetically modified organism. What do you mean by GMO? Genetically modified organism 1 मार्क में पूछा जाता है। प्लांट, बैक्टीरिया, फंजाई एंड एनिमल, ये सभी को उस जीन्स हैव बीन अल्टर्ड, उसके जेनेटिक कंपोजिशन नेचुरल जो था उसको मॉडिफाइड किए, अल्टर्ड किए, आर कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जीएम, प्लांट को भी मॉडिफाइड कर सकते हो, हैव बीन यूजफुल इन मेनी वे। जेनेटिकल मॉडिफिकेशन हैज, कौन से बेस में मॉडिफिकेशन करना है उससे पहले एम डिसाइड करना पड़ेगा, रिलेटेड टू प्रोडक्टिविटी, रिलेटेड टू रजिस्टिविटी, रिलेटेड टू न्यूट्रिशनल क्वालिटी। तो यहाँ पे वही दिया है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है, उसको कौन से वे से हमें क्या करना, मॉडिफाइड करना है। जेनेटिकली मॉडिफाइड हैज फर्स्ट मेड क्रॉप मोर टॉलरेंस, क्रॉप को ऐसा बनाना, मेड क्रॉप मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस। एबायोटिक स्ट्रेस आपने स्टडी किया है, टेम्परेचर, ड्रॉट, कोल्ड, क्लियर, हीट, ये सभी आ गया। तो उससे रजिस्ट करना है, चाहे एनवायरनमेंट में कैसा भी चेंज हो जाए, प्लांट को कोई साइड इफेक्ट होना नहीं चाहिए, क्योंकि ड्रास्टिकली ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है, तो उसका कोई साइड इफेक्ट किस पे नहीं होगा, प्लांट का। ऐसा प्लांट बनाना है, मतलब एबायोटिक स्ट्रेस रेजिस्टेंस प्लांट बनाना। टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग से इंक्रीज हो जाए, नो साइड इफेक्ट। ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर विल बी डिक्रीजिंग, नो साइड इफेक्ट। समटाइम रेनफॉल इज मोर, नो साइड इफेक्ट। और लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ड्रॉट, नो साइड इफेक्ट। ऐसा प्लांट बनाना है।
सेकेंड, हमें ऐसा मॉडिफिकेशन चाहिए प्लांट में, रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स। केमिकल पेस्टिसाइड का यूज है वो कम करना है, मतलब पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट बना दो, पेस्टिसाइड का यूज ही नहीं करना पड़ेगा। पेस्ट कैन नॉट गिव द एडवर्स इफेक्ट इनटू प्लांट, क्रॉप प्लांट, ऐसा बना दिए, क्लियर, मॉडिफाइड कर दिए, तभी भी पेस्टिसाइड का यूज नहीं करना पड़ेगा। हेल्प टू रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। कई बार हार्वेस्टिंग के बाद सेल्फ लाइफ पीरियड कम होता है, तो उसको प्रिजर्व करके पैकेज करके मार्केट में डिस्पैच करो, उससे पहले वो खराब हो जाता है। लेकिन एग्जांपल टोमेटो, तो उसका सेल्फ लाइफ पीरियड 2-3 दिन है, दूसरे कोई प्लेस से अगर हमें कहीं और रीजन में ट्रांसपोर्ट करना है, इट टेक्स नियर अबाउट 10 days, तो बिफोर रीचिंग ऑन दैट साइट इट विल बी डिग्रेडेड, क्लियर। तो उसको क्या करना है, सेल्फ लाइफ पीरियड इंक्रीज करना है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस से बचाना है। फोर्थ वन, increased efficiency of mineral uses by plant, mineral use ज्यादा से ज्यादा कर सके, this prevent early exhaustion of the fertility of soil, increase efficiency of mineral uses by plant। और फिफ्थ वन, enhanced nutritional value of food, और थोड़ा भी खाओ तब पूरा न्यूट्रिशन मिल जाए, ऐसा प्लांट बनाना। एग्जाम्पल विटामिन ए रिच राइस, गोल्डन राइस, इट्स एन एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूजफुल इन मेनी वे, किस तरह से यूज हो सकता है उसका, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड हैज मेड क्रॉप मोर टॉलरेंस टू एबायोटिक स्ट्रेस, रिड्यूस रिलायंस यूज ऑन केमिकल पेस्टिसाइड, हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूज्ड बाय प्लांट, और एनहांस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड। इस तरह का चेंजेस हमें प्लांट में चाहिए, तो प्रोडक्शन रेट एग्रीकल्चर में हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं ऑन चीपर वे और एज पर आवर रिक्वायरमेंट। इन एडिशन टू दिस यूज, इसके अलावा इन एडिशन टू दिस यूज, जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड हैज बीन यूज्ड टू क्रिएट टेलर मेड प्लान टू सप्लाई अल्टरनेटिव रिसोर्सेज टू इंडस्ट्रीज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्चेस, फ्यूल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। देखिए ऐसे प्लांट को मॉडिफाइड करना है जो अल्टरनेटिव सोर्स किसको दे, कैसे टाइप के इंडस्ट्री को, स्टार्च इंडस्ट्री को, पेपर वगैरह में, फ्यूल्स के रिलेटेड, एनर्जी प्रोडक्शन के रिलेटेड, और फार्मास्यूटिकल्स में किसके लिए हो जाएगा, वहां पे मेडिसिन प्रोडक्शन के रिलेटेड। सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर दैट यू विल स्टडी इन डिटेल आर द प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट। बायोटेक्नोलॉजी का जो एप्लीकेशन है, सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, आगे जो स्टडी किया उसमें से, इन एग्रीकल्चर दैट यू विल स्टडी इन डिटेल आर द प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट। इसमें डिटेल पढ़ना है, एक एग्जांपल पढ़ना है, विच कुड डिक्रीज द अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड यूज। पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट बना दिए तो पेस्ट है उस प्लांट में पेस्टिसाइड का हमें स्प्रे करना पड़ेगा नहीं। बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, अब यहां पे एग्जांपल लिया है, बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय ए बैक्टीरियम कॉल्ड बेसिलस थ्यूरिनजिनेसिस। बीटी नाम का एक टॉक्सिन है, क्लियर, वो कौन से बैक्टीरिया में बनता है, बेसिलस थ्यूरिनजिनेसिस में। तो बी ले लिया बेसिलस का, टी ले लिया थ्यूरिनजिनेसिस का, शॉर्ट नेम दे दिया बीटी टॉक्सिन। द टॉक्सिक सब्सटेंस that can be synthesized by bacteria, name of this bacteria is Bacillus thuringiensis, bt for short। bt toxin gene has been cloned from the bacteria, बैक्टीरिया से निकालना है उसका क्लोनिंग करके, and been expressed in plant, बैक्टीरिया से निकाला, टॉक्सिक है इसलिए प्लांट में ऐड किया, to provide resistance to insect without the need of insecticide। तो प्लांट में दे दिया तो प्लांट में प्रोडक्शन होगा बीटी टॉक्सिन। अब वो टॉक्सिन की वजह से उसमें जो कोई भी इंसेक्ट एक्ट करेगा तब वो इजीली डाइड हो जाएगा। विदाउट अप्लाइंग द इंसेक्टिसाइड आइदर पेस्टिसाइड इट विल बी डाइड इजीली। तो प्लांट बैक्टीरिया से हमने बीटी टॉक्सिन जीन निकाला और प्लांट में इंसर्ट किया। प्लांट में इंसर्ट किया तो प्लांट ने प्रोडक्शन किया किसका, वो टॉक्सिक जीन का। वो जीन को अपटेक किया इंसेक्ट ने और इंसेक्ट डाइड हो गया विदाउट अप्लाइंग द इंसेक्टिसाइड। Clear? If in effect created a biopesticides,
इंसेक्टिसाइड इधर बायोपेस्टिसाइड का यूज नहीं करना है. एग्जाम्पल आर बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, राइस, टोमेटो, पोटैटो एंड सोयाबीन एक्सेट्रा विल बी मॉडिफाइड. क्लियर. तो हमने बीटी टॉक्सिन जीन इंसर्ट किया हुआ है बीटी कॉटन में, बीटी कॉर्न में, राइस, टोमेटो, पोटैटो एंड सोयाबीन. क्लियर. वेरी मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक आ रहा है बीटी कॉटन. बीटी कॉटन, अभी जो स्टोरी आपको बताया सभी ने सुना होगा. पहले बीटी कॉटन अवेलेबल नहीं था, तब दूसरा वेराइटी हम यूज करते थे शंकर वगैरह, जिसमें मेजर इश्यू था जो बॉल होता है, कॉटन बॉल प्लांट में लगता है एट द टाइम ऑफ आफ्टर पॉलिनेशन. The fruit will be developed is called a cotton ball, और from this cotton ball cotton will be harvested. सभी ने कॉटन प्लांट देखा होगा. मेजर इश्यू यह था, ये जो कॉटन बॉल था उसमें कॉटन तो था ही, उसके साथ इसको इफेक्ट करने वाला इंसेक्ट. क्लियर. कैटरपिलर, ईयर्ड, इसमें ओवल करके अंदर पेनिट्रेट हो जाके उसको अपटेक करते थे ये कॉटन को, और बिकॉज ऑफ दिस प्रोडक्शन रेट विल बी डिक्रीजिंग ड्यू टू इफेक्ट ऑफ दिस इंसेक्ट इन कॉटन प्लांट. हमने यहां पे जेनेरिकली मॉडिफाइड बना दिया कॉटन को और उसका नेम दे दिया बीटी कॉटन. नेम क्यों बीटी कॉटन दे दिया? तो अभी हमने बताया बीटी टॉक्सिन जीन विल बी आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया. नेम ऑफ दिस बैक्टीरिया इज बैसिलस thuringiensis, और दिस बीटी जीन बैसिलस thuringiensis toxic gene will be inserted into cotton plant, or because of this cotton plant also named as a BT cotton. Some strain of Bacillus thuringiensis produce protein. Bacillus thuringiensis के कोई स्ट्रेन जिसके पास ऐसा जीन था और वो एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनाता था that kill certain insect, और ये प्रोटीन अगर कोई इंसेक्ट पे हमने अप्लाइड करे तो ये इंसेक्ट क्या हो जाता था? किल हो जाता था. सच है लेपिडोप्टेरन्स, टोबैको बर्डवर्म, आर्मीवॉर्म, ये पूछा जाता है टोबैको बर्डवर्म एंड आर्मीवॉर्म. आइदर Coleopterans, beetles and diphtherians, flies and mosquito. तो ये जो प्रोटीन था वो लेपिडोप्टेरन्स के ग्रुप से टोबैको बर्डवर्म एंड आर्मीवॉर्म, Coleopterans से बीटल्स स्मॉल इंसेक्ट जो होते हैं, और डिप्थेरियंस के लिए फ्लाइज एंड मॉस्किटो को किल कर सकता था. Bacillus thuringiensis forms protein crystal during a particular phase of their growth. ये Bacillus thuringiensis बैक्टीरिया है. They produce a protein. Name of this protein is cry protein. Or for production of this cry protein, there is the cry gene is responsible. Cry gene, they produce cry protein in this bacteria, right? Bacillus thuringiensis form protein crystal during a particular phase of their growth. Crystalline protein का नेम दिया cry protein. These crystals contain a toxic insecticidal protein, और ये crystals में toxic insecticidal protein होता था. ये बैक्टीरिया ये प्रोटीन बनाता था और क्रिस्टल्स बनाता था, और क्रिस्टल्स में टॉक्सिन प्रोटीन था. समझ में आ गया? बैक्टीरिया they possess cry gene. Due to this they produce cry protein, or in crystalline protein there is the toxic protein will be there. Why does this toxic not kill to the bacillus? ये क्रिस्टलाइन प्रोटीन जो इंसेक्ट को कई सारे ग्रुप को ये किल करता था, तो बैक्टीरिया को क्यों नहीं किल करता? पॉइजनस है तो उसके लिए भी पॉइजनस होना चाहिए. तो ये क्रिस्टलाइन प्रोटीन आर इनएक्टिवेटेड इन द बैक्टीरिया because of lack of alkaline pH. It will be activated only in which condition? Alkaline pH.
बैक्टीरिया ने बनाया, बट वो एक्टिव हुआ नहीं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अल्कलाइन पीएच. It will be activated only on which condition? Presence of alkaline pH, or that is present in gut of insect. यहाँ पे फ्लाइज, मॉस्किटो, बर्डवर्म जो दिए है वो अगर उसको अपटेक करते तो उसके गट में एलिमेंट्री कैनाल में कौन सा पीएच था? अल्कलाइन. और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन पीएच दिस प्रोटीन विल बी एक्टिवेटेड. इट विल बी ए बाइंड विथ एपिथेलियल लेयर ऑफ देयर गट into insect. Due to binding of this protein, they increase the porosity of their epithelium layer. Due to increasing the porosity, there is the extracellular fluid will be filled in this cavity and swelling. Due to swelling, it will be a burst out or organism will be a died. देखिए बैक्टीरिया में inactive protein था because of lack of alkaline pH. It will be activated in caterpillar because of presence of alkaline pH in their gut. Activated crystalline protein bind to their epithelium layer into their gut. Due to binding of the crystalline protein into their gut, they increase the pores. Due to increasing pores, fluid fill up can be occurs, or due to filling of fluid, the swelling, and due to swelling, organism will be a died. Clear? So without pesticide organism will be died. तो हमने क्रिस्टलाइन प्रोटीन बैक्टीरिया से निकाला, प्लांट में इंसर्ट किया, प्लांट में उसका प्रोडक्शन हुआ, जब कैटरपिलर ने अपटेक किया उसके गट में एक्टिवेट हुआ, उसके एपिथेलियम ने बाइंड हुआ, पोर्स इंक्रीज हुआ, स्वेलिंग हुआ और डाइड हो गया बाय विदाउट अप्लाइंग पेस्टिसाइड. दे डू नॉट गिव एडवर्स इफेक्ट इनटू बैक्टीरिया बिकॉज दे आर इनएक्टिव. तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा they do not give adverse effect, either toxic effect into bacteria, either do not kill the bacteria. Why? Because of lack of alkaline pH. Actually, the Bt toxin protein exit as a inactive prototoxin. Inactive prototoxins के फॉर्म में बैक्टीरिया में है. But once an insect ingests the inactive toxin, ये inactive toxin जब insect को अपटेक करे तो it is converted into an active form. अपटेक करे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक्टिव. क्यों एक्टिव हुआ? ड्यू टू द अल्कलाइन पीएच ऑफ द गट विच सोल्यूबलाइज द क्रिस्टल्स. और अल्कलाइन पीएच की वजह से एक्टिवेट होगा, सोल्यूबल बन जाएगा. द एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड्स टू द सरफेस ऑफ मिड गट एपिथेलियम सेल. और ये एक्टिवेटेड टॉक्सिन कहां पे बाइंड करेगा? मिड गट के एपिथेलियम लेयर पे बाइंड करेगा. और बाइंड करके वो क्या क्रिएट करेगा? क्रिएट्स ए पोर्स दैट कॉज सेल स्वेलिंग. पोर्स क्रिएट होगा तो सेल स्वेल होगा एंड लाइसिस मतलब बस्ट आउट एंड इवेंचुअली कॉज द डेथ ऑफ इंसेक्ट. और इंसेक्ट का डेथ हो जाएगा. बैक्टीरिया में इनएक्टिव स्टेज में था बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अल्कलाइन पीएच. वही सेम प्रोटीन क्रिस्टलाइन प्रोटीन अगर इंसेक्ट ने अपटेक किया तो उसके गट में अल्कलाइन पीएच की वजह से वो एक्टिवेट हुआ, उसके एपिथेलियम लेयर पे बाइंड हुआ. बाइंड होने के बाद पोर्स जनरेट हुआ. पोर्स जनरेट हुआ तो उसमें फ्लूइड फिलअप हुआ, स्वेलिंग हुआ और बस्ट होने के बाद वो डाइड हो गया. स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन वेर आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस thuringiensis. बीटी टॉक्सिन जीन वेर आइसोलेटेड. बैक्टीरिया में जो ये बीटी टॉक्सिन जीन था, क्लियर, क्रिस्टलाइन जीन, क्राई प्रोटीन के रिलेटेड क्या था? क्राई जीन. ये जीन को निकाला एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू सेवरल क्रॉप प्लांट. प्लांट के साथ उसको इनकॉर्पोरेट ज्वाइन कर दिया. सच एज किस किस में ज्वाइन किया? फिगर 12.1 कॉटन में. द चॉइस ऑफ द जीन डिपेंड अपॉन द क्रॉप. कौन सा क्रॉप है उसके बेस से और कौन सा पेस्ट है उसके बेस से, एंड द टारगेट पेस्ट. कौन सा जीन हम सिलेक्ट करेंगे वो क्रॉप और पेस्ट के बेस से. एज मोस्ट बीटी टॉक्सिन्स आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक. ये बीटी टॉक्सिन है वो स्पेसिफिक ग्रुप को ही किल कर सकता है, सभी को किल नहीं करता है. द टॉक्सिन इज कोडेड बाय ए जीन नेम्ड क्राई. तो यहाँ पे बीटी टॉक्सिन जीन है उसको क्या नेम दे दिया? क्राई.
because they produce crystalline protein. There are a number of them. For example, very most important, the protein encoded by the gene Cry1AC. यहाँ पे नीट के लिए बहुत टाइम पूछा गया क्वेश्चन है ये. Cry1AC and Cry2AB control the cotton bollworm. तो cotton bollworm में Cry1AC, Cry2AB. That of Cry1AB, देखिए यहाँ पे AC था, AB कंट्रोल्स कॉर्न बोरर. तो ये पूछा जाता है आपको एमसीक्यू में. कॉटन बोलवर्म के लिए Cry1AC, Cry2AB और 1AB फॉर कॉर्न बोरर. राइट. तो ये पूरा स्टोरी था बीटी टॉक्सिन जिन के लिए. इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट. अब देखो ये पैसिफिक इंसेक्ट से इसका कोई साइड इफेक्ट होगा नहीं. ये देखो कॉटन दिया हुआ है, कॉटन बॉल जिसमें होल किया और इसकी वजह से यहाँ पे प्रोडक्शन रेट क्या होगा, डिक्रीज. क्लियर. कॉटन बॉल डिस्ट्रॉय द बॉलवर्म. पहला ए जो दिया है ये डिस्ट्रॉयड हुआ है और बी जो दिया है फुल्ली मैच्योर्ड कॉटन बॉल. नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट. इसका भी फ्रेंड्स आपको एलन हमने सेंड कर दिया है. सेम है यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी इन इट्स एप्लीकेशन जो हमने टेक्स्ट बुक में पढ़ा. एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, एग्रोकेमिकल, ऑर्गेनिक और जेनेटिकल इंजीनियरिंग, क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, ग्रीन रिवोल्यूशन का जो स्टोरी बताया वो पूरा. और उसका सॉल्यूशन है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो हमने स्टडी किया यहाँ पे टू एनहांस न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ फूड. एग्जाम्पल है गोल्डन राइस, विटामिन ए. देखिए न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ राइस, विटामिन ए एनरिच राइस. दिस इज राइस जीन ऑफ बीटा कैरोटीन इन ट्रांसफर्ड. मेड क्रॉप more tolerance to abiotic stress, cold, drought, salt and heat. Help to reduce post harvest losses. ये हमने अभी स्टडी किया है. उसमें एग्जाम्पल है जो आपको ऐड करना है. हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस में फ्लेवर सेवर टोमेटो. फ्लेवर्ड सेवर टोमेटो ट्रांसजेनिक वेराइटी है टोमेटो का. फ्लेवर्ड सेवर स्टार मार्क कर रहा हूं. ड्यू टू इनिबिशन ऑफ पोलीगैलेक्टुरोनेज एंजाइम. पोलीगैलेक्टुरोनेज एंजाइम विच डिग्रेड पेक्टिन. पेक्टिन को डिग्रेड कर सकता है एंजाइम. सो दैट टोमेटो वेराइटी रिमेन फ्रेश एंड रिटेन फ्लेवर मच लॉन्गर. फ्रेश भी रहता है और उसका फ्लेवर भी लॉन्गर ड्यूरेशन तक मेंटेन रहता है. फ्लेवर सेवर टोमेटो डेवलप बाय एंटीसेंस टेक्नोलॉजी से डेवलप किया गया. तो फ्लेवर सेवर टोमेटो में इनिबिशन ये जीन का होगा. ये एंजाइम के इनिबिशन की वजह से क्या नहीं होगा, पेक्टिन डिग्रेड नहीं होगा. पेक्टिन डिग्रेड नहीं होगा तो फ्रेश और लॉन्ग ड्यूरेशन तक उसका क्या रहेगा, फ्लेवर्ड. इंक्रीज इफिशियंसी ऑफ मिनरल यूज्ड बाय प्लांट हमने स्टडी कर लिया. प्रोड्यूस बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जिसमें प्रोडक्शन ऑफ हिरियोडिन. हिरियोडिन इज ए प्रोटीन दैट प्रिवेंट द ब्लड क्लॉटिंग. ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करने के लिए यूज होता है. जीन एनकोडिंग हिरियोडिन वाज केमिकली सिंथेसाइज्ड. जीन को सिंथेसाइज किया and transfer into Brassica nepius where hirudiin accumulated in seed. Hirudiin is purified and used as a medicine. तो मेडिसिन पर्पस के लिए प्लांट का कैसे यूज हो सकता है, जिनको मॉडिफाइड करो, प्लांट में इंसर्ट करो, उसके सीड से उसको हार्वेस्ट करो और फिर उसका यूज करो. क्लियर. तो ये हो गया फार्मास्यूटिकल्स के लिए एग्रीकल्चर का यूज, प्लांट्स का यूज. टू प्रोड्यूस हर्बिसाइड रेजिस्टेंस प्लांट. प्लांट को हर्बिसाइड्स रेजिस्टेंस बनाना है. कई सारे फार्म में कई सारे अनवांटेड प्लांट ग्रोथ होते हैं तो उसको मैन्युअली रिमूव करने के लिए कॉस्ट लगता है. तो हर्बिसाइड्स को आप स्प्रे कर दो तो प्लांट है उससे रजिस्ट होगा. तो प्लांट है वो एज इट इज रहेगा और हब से वो डाइड हो जाएगा बिकॉज ऑफ रजिस्टिविटी. क्लियर. फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट वाज टोबैको. हर्बिसाइड रेजिस्टेंस में किसका डेवलप किया था, टोबैको. It contain resistance gene against weedicides. Glyphosate
पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप में रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड का यूज कम करने के लिए पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट बनाना है। क्लियर? यहां पे सभी क्यों देखो टॉपिक दिया हुआ है। GM genetically modified been used to create tailor made plant to supply alternative resources to industries in the form of starches, fuels and pharmaceuticals। यूज ऑफ जेनेटिकल मॉडिफाइड प्लांट पूछा जाता है, हेडिंग ये है, यूज क्या क्या है, तो उसका ये सभी यूज्ड हो गया। न्यूट्रिशनल क्वालिटी के रिलेटेड हो गया। सेकेंड, एबायोटिक स्ट्रेस रजिस्ट हो गया। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस्ट कर दिया यहाँ पे। इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूज्ड बाय प्लांट हो गया। बायोफार्मास्यूटिकल्स में हमने एग्जांपल स्टडी किया, जहां पे एग्जांपल टेक्स्ट बुक में नहीं दिया वो ऐड करना। क्लियर? एक हो गया यहाँ पे न्यूट्रिशनल में गोल्डन राइस। देन पोस्ट हार्वेस्ट लोड में फ्लेवर सेवर टोमेटो ऐड कर दीजिएगा। और यहां पे हिरियोडिन फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्शन के लिए, बायोफार्मास्यूटिकल्स। हर्बिसाइड रेजिस्टेंस में ऐड करना है। पोस्ट पेस्ट रेजिस्टेंस में ऑलरेडी बीटी कॉटन हमने डिटेल स्टडी किया है, ये अंडरलाइन दिया हुआ, पूरा टेक्स्ट बुक बेस दिया हुआ है। क्लियर? और उसमें एक बाकी है नेमेटोड रेजिस्टेंस प्लांट, RDNA टेक्नोलॉजी का यूज करना है नेमेटोड से रेजिस्ट करने के लिए। पेस्ट रेजिस्टेंस स्टडी कर लिया, नेमेटोड रेजिस्टेंस, और उसका टेक्स्ट बुक में एक नेम अपने को दिया हुआ है RNA इंटरफियरेंस, RNA इंटरफियरेंस, राइट? तो ये है नेमेटोड रेजिस्टेंस प्लांट। ये हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे फ्रेंड्स। अगर कोई क्वेरी है तो कॉल देना है, बाकी इसमें से नोट्स आपको टेक्स्ट बुक में मॉडिफाइड करना है और फिर नोटबुक में भी लिखना है, राइट? ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।